Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine, and safe at home. Welcome to our online education. Myself, Sangundar Sulakshna, and I will be teaching you economics. So, students, today we are here to see Standard 12th Economics, chapter number 5, Poverty. Already we have seen few part of this chapter, so today we are here to see the part 5 of the chapter. So students, without wasting the time, let us move on with a short discussion of the previous portion's revision. What we have seen on the previous portion. Previously, we have seen the indicators of the poverty. What are the indicators? First of all, indicators means any factors that is used to determine or to measure the level of any particular topic, that is considered as the indicators. So various factors affecting the poverty, how we can use it as a measuring tool for that measurement of the poverty or the level of the poverty is considered as the indicator of the poverty. So now today we are going to see the further portion of the indicator of the poverty. But last time previously we done the portion of the three indicators in a very detailed manner. First indicator was per capita household consumption expenditure. You know that after apart from the basic needs and necessity, जब हमारा basic needs और necessity complete हो जाता है, after that it comes the topic of the durable goods, car, washing machine, computer, AC and so on. So what type of expenditure, how much per capita expenditure is done by a particular individual family on a particular country is considered in the per capita household consumption expenditure. तो घर के बाद in the sense खाना, कपड़ा और घर. After that if you are seeing गाड़ी, मशीन, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, ये सारी चीजों के पीछे एक पर्टिकुलर फैमिली कितना खर्चा करता है इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में देखा गया. सो इफ यू आर सीइंग कंसिडरिंग द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री जो होता है वो कंट्री के लोग इसके पीछे ज्यादा एक्सपेंस करते हैं. बट व्हाट अबाउट द डेवलपिंग कंट्री? द डेवलपिंग कंट्री इज लिटल लेस देन द डेवलप्ड कंट्री. सो हियर द expenditure is mostly seen on the basic things of the life. After that these durable goods are coming. After that the next topic was level of malnutrition. What is malnutrition? When due to poverty, due to income, low income, when a particular person is not able to get the minimum level of calories, protein, mineral and that all portion due to a nutritive food, but he is not able to afford or buy the nutritive food, then it is considered as the level of malnutrition. Even we have seen a table on this in a very brief manner. In that consideration we have seen that from 1920, if you are 1990 to 92, if you are seeing from that portion to 2014, if you are seeing the slab, it has been 23%, but it reduced to 15.2% in the certain year. What is the current update that we are not doing, but last reading was done on 2014 and 15. This was the level of malnutrition. यानी जितना हमें कैलोरीज, प्रोटीन, मिनरल ये सारी चीजें मिलना चाहिए, बट पैसे ना होने की वजह से जब हम उसे अफोर्ड नहीं करते, उसे भी एक इंडिकेटर की तरह लेवल ऑफ पॉवर्टी में देखा जाता है. आफ्टर दैट द थर्ड टॉपिक इफ यू आर सीइंग दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इवन वी हैव सीन डिफरेंट कंट्रीज स्टेबल विद कंपैरेटिव टू इंडिया. तो व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब जब एक बच्चा बर्थ लेता है, एट दैट टाइम ओनली व्हेन वी आर कंसीडरिंग हाउ मच ईयर ही इज गोइंग टू लिव, हाउ वी कंसीडर बाय फूड, हेल्थ, क्लीनिनेस, सराउंडिंग, ऑल दिस थिंग्स आर अफेक्टिंग मेडिकल पोर्शंस. तो ये सारी चीजों को कंसीडर करके हम ये देखते हैं कि कितना साल तक वो जी सकता है, एक एस्टिमेटेड लाइफ मिलता है, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. नाउ इन इंडिया इट इज बीन सीन अप फॉर 68 years, but in Norway if you are seeing it is 82 years. So see the difference is this is due to the medical services and good food, we can say that. After that we have said that the infant mortality rate. What is infant mortality rate? Infant mortality rate मतलब 0 से लेके 1 year तक का बच्चा, you know that it depends on a good nutritive food of the mother and the medical services. If it is not good then this rate can be seen. जितना 1000 में से कितने बच्चे मरते हैं, ये जो रेट हमें डेफिसिट करता है, that is considered as the infant mortality rate. If you are seeing
In Norway it is only 2, from 1000 only 2 children are dying, but in India it is 39, which means approximately 40 बच्चे हर साल 1000 में से मर जाते. So in this manner we have seen the infant mortality rate. So until these indicators we have seen in a very detailed manner. So now let us move on with a line to line explanation of the today's portion in the further portion in a very detailed manner. So students, now let us move on with the further portion of the explanation. So last time we have seen up to the indicator of the life expectancy and infant mortality rate, which means 5.3.3. So today we are going to continue with 5.3.4 medical facilities. So I am going to read it out, listen it out carefully, then we will discuss about it in a very detailed manner. In health sector, doctors, nurse, compounder, etc. are included, and their scarcity adversely affect health services. India as compared to other countries lacks medical services and doctor. अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, मेडिकल फैसिलिटी मतलब ऑब्वियसली हेल्थ सेक्टर आ जाता है. अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर्स है, नर्स है, कंपाउंडर्स है, ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज उसके अंदर जुड़े हुए, प्रोफेशनल्स वी कैन से दैट. बट कहीं ना कहीं इनकी स्कैरसिटी यानी इनकी कमी हमें एडवर्सली इफेक्ट खलता है. हेल्थ सर्विसेज में इनकी कमी आज भी देखा जाता है कंपेरेटिव अदर कंट्रीज. अगर हम दूसरे सारे कंट्री के साथ इंडिया को कंपेयर करते तो इंडिया का जो मेडिकल सर्विसेज है और डॉक्टर्स है आज भी कम है, ये माना जाता है. सो लेट अस सी द फर्दर टॉपिक. इन डेवलपिंग इकोनॉमिक्स पीपल गेट लेस मेडिकल सर्विसेज. दे ऑफन सफर्स फ्रॉम वेरियस डिसीजेस एज पुअर पीपल डू नॉट गेट कंप्लीट न्यूट्रिटिव फूड. एज अ रिजल्ट देयर इम्यूनिटी इज टू लो. The country has less medical facilities. People are deprived of such services. As a result, poverty is more. अगर हम डेवलपिंग इकोनॉमिक की बात करते हैं यानी कि इंडिया जैसी कंट्री, बिकॉज यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपिंग है. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग इकोनॉमिक तो लोगों को यहाँ पे बहुत ही कम मेडिकल सर्विसेज मिल पाता है, इसीलिए उनको बहुत सारे अलग अलग बीमारियों से सफ़र करना पड़ता है. इवन गरीब लोगों की अगर हम बात करते हैं तो उन्हें जितना अच्छा खाना मिलना चाहिए, जैसे लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन में हमने ये देखा, उन्हें जितना न्यूट्रिटिव फूड मिलना चाहिए उतना कंप्लीट उनको मिल नहीं पाता है. जितना 2400 कैलोरीज की ज़रूरत है तो उन्हें 1000 या 1200 मिलता होगा, हाफ टू हाफ भी मिलता होगा या 800-900 भी मिलता होगा. तो यहाँ पे उतना उनको कंप्लीटली न्यूट्रिटिव फूड नहीं मिलता. एज अ रिजल्ट क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी बहुत ही लो देखा जाता है, यानी उनकी जो शक्ति होती है, वी कैन से दैट ना, डिसीजेस से फाइट बैक करने की जो इम्यूनिटी शक्ति होती है वो बहुत ही कम देखा जाता है. इसीलिए कंट्री जहाँ पे लेस मेडिकल सर्विसेज है वहाँ पे लोग भी इस चीज़ से थोड़े वंचित यानी दूर रहते, उनको भी ये फैसिलिटीज इतना मिल नहीं पाता और एज अ रिजल्ट पॉवर्टी और ज़्यादा होता जाता. आप ये बोलोगे मेडिकल सर्विस ना मिलने की वजह से कैसे पॉवर्टी ज़्यादा हो सकता है, तो मेडिकल सर्विसेज नहीं मिलेगा तो वो मरेगा, उसकी लाइफ अच्छी नहीं होगी, तो उसके बाद वाला जो फैमिली है उसको भी इनकम सोर्सेज में प्रॉब्लम होगी, तो वो भी गरीब होता जाएगा. कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेडली ये सारी टॉपिक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. In developing countries, every 6,000 population, one doctor is available, whereas among developed country, every 350 people, service of one doctor is available. तो अगर हम बात करते डेवलपिंग कंट्री में यानी कि इंडिया जैसे कंट्री में 6000 लोगों के लिए एक डॉक्टर होता है, जबकि डेवलप्ड यूएसए, यूके, नॉर्वे ऐसी जगहों पे 350 लोग यानी 350 लोगों के लिए एक डॉक्टर होता है. कैन यू सी द वास्ट डिफरेंस, 350 कहाँ, 6000 कहाँ. यहाँ पे 350 के लिए वन डॉक्टर और वहाँ पे 6000 के लिए वन डॉक्टर, तो कैसे वो डेवलप हो पाएगा. इसी तरीके से हम कहीं ना कहीं मेडिकल सर्विस में भी पॉवर्टी पे देखे जाते. इन डेवलप्ड कंट्री एवरी ईयर 1.7 करोड़ पीपल डाई फ्रॉम डायरिया, मलेरिया एंड टीबी. इन द होल वर्ल्ड 2.3 करोड़ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम एड्स. आउट ऑफ दिस 90% बिलोंग टू द डेवलपिंग इकोनॉमिक. अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं तो 1.7 करोड़ यानी हमें ऐसा लगता है सिर्फ डायरिया यानी झाड़ा उल्टी का जो प्रॉब्लम होता है, डायरिया, मलेरिया, टीबी ऐसे रोगों से 1.7 करोड़ पीपल आर डाइंग एवरी ईयर. हर साल 1.5 करोड़ लोग तो ऐसे ही मलेरिया, डायरिया और टीबी में मर जाते हैं. अगर होल कंट्री की अगर हम बात करते हैं, होल वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में 2.3 यानी 2.5 करोड़ लोग एड्स से सफ़र करते हैं. यू नो दैट एड्स, HIV एड्स से
सफ़र करते हैं, बट उसमें से 90%, 2.3 करोड़ में से 90% तो डेवलपिंग कंट्रीज में से, डेवलपिंग कंट्रीज मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिया नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज में जितने कंट्रीज आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, जितने डेवलपिंग कंट्रीज है वो सारे डेवलपिंग कंट्रीज में से ही 90% है, बाकी के 10% ही डेवलप्ड कंट्री में से। तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं मेडिकल सर्विस से बहुत ही पीछे और पुअर माने जाते हैं। तो पॉवर्टी को इंडिकेट करने के लिए कहीं ना कहीं मेडिकल सर्विस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर, health of population is much connected to drinking water and facility of cleanliness. According to census report 2011, in India 63.3 families get pure drinking water through treated sources. 88.67 families get untreated tap water. 26% people get water from other sources such as well, hand pump, tube well, spring, river, canal, pond. In the absence of pure drinking water, polluted water, contaminated, increases the chance of having waterborne diseases, hence make the problem of poverty more severe. तो ड्रिंकिंग वाटर, हमारा हेल्थ जो है पॉपुलेशन का, ये ज़्यादातर किसके साथ कनेक्टेड है? पानी के साथ। क्यों पानी के साथ? अवर बॉडी इज कंसिस्टिंग 70% वाटर, ठीक है, 70% वाटर हमारे बॉडी में हो तो हमारा बॉडी अच्छे से काम कर सकता है, इसलिए हमें फैसिलिटी ऑफ क्लीनिनेस, अच्छा पानी की भी ज़रूरत रहती है। इवन हमें नहाना धोना है, खाना अगर अच्छे बर्तन में खाना तो उसको धोना है, कपड़े क्लीनली पहना, तो हर चीज़ के लिए हमें पानी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट 2011 की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर 63% लोगों को ही अच्छा पानी मिल रहा था। अच्छा पानी इन द सेंस ट्रीटेड सोर्स, जो साफ पानी माना जाता है, जो क्लीन वाटर माना जाता है, वो सिर्फ 63% पीपल को ही मिल रहा था। बाकी 8.67 पीपल को अनट्रीटेड टैप वाटर, यानी जो नल का पानी होता है कहीं से भी आता है, दैट वाटर वॉज बीन ड्रिंक्ड अप। और उसी में 26% की अगर हम बात करते हैं, उनको ना नल का पानी मिल रहा था, ना अच्छा पानी मिल रहा था, तो उनको कुएं में से पानी पीना पड़ता था, हैंड पंप, यू नो दैट, वो पंप मारना पड़ता था गांव में, दैट हैंड पंप से पानी लाना पड़ता था, ट्यूबवेल में से आता था। स्प्रिंग रिवर यानी जो ये बारिश के सीजन में भर जाता है पानी, वो जो रिवर जैसा एक जगह दिखता है, जो बहता पानी होता है रिवर, वहाँ से। फिर कैनाल में से, जो हम बोलते हैं ना कैनाल है रोड साइड, तो दैट कैनाल से, पॉन्ड से, तालाब से, यहाँ सारी चीज़ें से उनको पानी पीना पड़ता है। एंड यू नो दैट अगर उनको शुद्ध पानी ना मिले तो ये जो तालाब, ये सारी चीज़ें, इवन इन एसएस वी हैव स्टडीड इन 8th and 9th स्टैंडर्ड, 6th 7th स्टैंडर्ड, लोग एक बाजू भैंस धो रहे हैं, एक बाजू कपड़ा धो रहे हैं और उसी से हम पानी पी रहे हैं, तो वो कंटेमिनेटेड वाटर माना जाता है। कंटेमिनेटेड वाटर मतलब जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे बैक्टीरिया एंड वायरस हो जाते हैं, पॉल्यूटेड वाटर माना जाता है। और उससे चांसेस ये बढ़ जाता है कि हमें कहीं ना कहीं बहुत सारे वाटर बॉर्न डिजीज, पानी से लगने वाले बहुत सारे रोग हमें लग सकते हैं, और उससे क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी और सीवियर होता हुआ नजर आता है। इवन अच्छा पानी ना मिलना भी एक गरीबी माना जाता है, क्योंकि शरीर को अच्छा रखने के लिए पानी तो कम से कम चाहिए। तुम खाना ना खाओ, तुम काफ़ी बार उपवास करके रह लेते हो, तो पानी तो उसमें चाहिए ना, बिना पानी के उपवास भी तो मोस्ट प्रोबेबली कम होता है। जो बिना पानी के उपवास करता है, सैल्यूट टू दैम, क्योंकि शरीर में 70% पानी तो चाहिए ही चाहिए, और वो भी शुद्ध पानी चाहिए। अगर वो भी अच्छा पानी ना हो तो हम कैसे सर्वाइव करें? तो सर्वाइव के लिए हमारा बेसिक नीड में पानी भी होता है, तो ड्रिंकिंग वाटर भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी में देखा जाता है। सो नाउ द प्रोविजन ऑफ टॉयलेट. Okay, so provision of toilets, according to the census report 2011, in India 70% of the total population lives in village. They are more prone to waterborne and contagious diseases. To save them from diseases, cleanliness is very important, and for that toilet facilities are must. Total families 100%, toilet facilities within house 66%, house without toilet facilities 34%. Classification of slum families with toilet facilities. तो यहाँ पे टेबल दिया गया है। सेंसस रिपोर्ट जो 2011 में देखा गया है, उसमें 70% जो टोटल पॉपुलेशन है, 100% में से 70% लोग आज भी विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं। एंड यू नो दैट दे आर मोर प्रोन टू वाटर बॉर्न एंड कॉन्टीजियस डिसीजेस। अगर आप देखो तो उनको ज़्यादातर पानी की बीमारी, कॉन्टीजियस, चेपी रोग, ये सब चीज़ें गांव में ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें इसीलिए लगती है क्योंकि उनके आज भी उनकी यहाँ पानी
कितने विलेज इफ यू आर सीइंग एज वी सेड वेल में से पानी यूज करना पड़ता है, हैंडपंप यूज करना पड़ता है, आज भी वहाँ पानी का प्रॉब्लम है। सेकेंड, कंटीजियस चीजेस इसलिए क्योंकि आज भी वहाँ पे टॉयलेट का इश्यूज देखा गया है। यू नो दैट मैनी मूवीज वर मेड फॉर टॉयलेट्स, के टॉयलेट बनाना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए। आज भी वो लोग वो चीज़ को कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर रहे, या तो पालते नहीं है, वो कल्चर ओरिएंटेड चीज़ों से बंधे हुए, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्टेजियस डिसीजेज और वाटर बॉर्न डिसीजेज गाँव में ज़्यादा देखा जाता है। और इस डिसीजेज से उनको बचाने के लिए नेसेसरी है कि उनका आजू बाजू का वातावरण क्लीनिनेस पे हो, शुद्ध और अच्छा हो, तो उसके लिए टॉयलेट फैसिलिटी तो होना चाहिए। देयर वॉज एन एडवर्टाइजमेंट, गांव का एक एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा था, वेरी वियर्ड वन टू बी ऑनेस्ट बट वेरी प्रैक्टिकल वन, सच भी है। एक बच्चा है, खेत साइड जाता है, पूप अप करता है, यानी टॉयलेट फैसिलिटी नहीं होता, पूप अप करता है तो वहाँ मक्खियाँ घूमती है, वही मक्खियाँ आके वेंडर के दुकान में बैठता है और वही वेंडर का वो जो खाना है वो बेचता है किसी को और वो ले जाता है, फिर वो खाता है। वी सी दैट कि इतनी छोटी छोटी जर्म्स कहाँ से कहाँ लग जाता है, फिर वो एक इंसान खाता है, उसको वॉमिटिंग होने लगता है और धीरे धीरे वो बहुत ही बीमार होकर मर भी जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें भी मैंने देखी एडवर्टाइज में ही, टीवी में बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों को जागरूक करने के लिए बताया जाता है। फिर ये बताया गया था वो एडवर्टाइज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही था और टॉयलेट बनाने के हेतु से ही बनाया गया था। सो दैट थिंग्स शोज अप कि हमें पता भी नहीं होता और ये छोटी छोटी चीज़ें हमें कब मार देता है हमें पता नहीं रहता। तो क्लीनिनेस इज मोस्ट नीडेड, तो प्रोविजन ऑफ टॉयलेट को भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह देखा गया। तो यहाँ पे टेबल लिखा गया टोटल फैमिली, अगर हम ये मान ले 100% फैमिली है इंडिया के अंदर, उसमें से टॉयलेट फैसिलिटीज घर के अंदर ही है वैसे 66% है, और बिना टॉयलेट फैसिलिटी, आज भी टॉयलेट का फैसिलिटी ही नहीं है वैसे 34% पब्लिक हैज बीन सीन, जो कि एक मेजर इशू की तरह देखा जाता है। इन इंडिया 66% हाउस हैव टॉयलेट फैसिलिटी विद इन हाउस, whereas remaining 34 families use common toilets. Lack of cleanliness, population and public weakness keeps the production and productivity at low level, which is one of the factor in rise in poverty. इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 66% हाउस जो है वो टॉयलेट फैसिलिटीज के साथ देखा जाता है, जबकि 34% फैमिलीज जो है वो कॉमन टॉयलेट यूज करता है। कॉमन टॉयलेट यानी आपको पता है कॉमन, जैसे बस स्टैंड के पास ऐसे कहीं होते हैं वो कॉमन टॉयलेट, जहाँ पे एंड यूज़ किया जाता है, फ्री में भी अफोर्ड किया जाता है बट पे एंड यूज़ होता है, गवर्नमेंट ने कॉमन टॉयलेट्स भी लगा के रखे, वो यूज़ करता है। और कई जगह तो वो भी नहीं है, तो उसमें क्या होता है, लैक ऑफ क्लीनिनेस नहीं होता। जैसे हम हमारे घर को क्लीन रखते हैं, ऐसे हम होटल में जाते हैं तो उसको क्लीन रखते हैं, रोज झाड़ू मारते पोछा मारते नहीं, तो वो एक लैक ऑफ क्लीनिनेस देखा जाता है, पॉल्यूशन देखा जाता है, फिजिकल वीकनेस। अगर हम उस टॉयलेट में, यू नो दैट, अगर हम पब्लिक टॉयलेट में कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हैं, उतर के 1 मिनट जाके बाथरूम भी करके यू नो दैट, देखो सोचते हैं कितना गंदा वाला फीलिंग आता है, तो एक फिजिकल वीकनेस आ जाता है, अंदर से बीमार हो जाता है इंसान अगर उसके अंदर जाता है तो। सो कीप्स द प्रोडक्शन, और ये फिजिकल वीकनेस की वजह से हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम होते जाता है, और इस वजह से भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी में एक राइज देखा जाता है। सो दिस वाज द प्रोविजन ऑफ टॉयलेट। सो लेट अस सी द हाउसिंग। One of the indicator of poverty is also housing facility and its nature. Developing countries lacks housing facility. People live in dirty hutments and slums. This is called measurement of existing poverty. Housing is a primary need of human being. Types of housing facility decides the level of poverty. Construction of house, veranda, members in the house, tap in the house, drainage, electricity facilities, etc. Percentage of house with these facilities decides the level of poverty. India lacks house with full facilities. In India, 60 crore people have dwelling which are dangerous for their health and risky for their life. Most of the house in India comprise of one room facility, which is one of the major measuring rod for poverty. Housing, घर, एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर अगर हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो घर की फैसिलिटी और उसका नेचर। डेवलपिंग कंट्री में कहीं ना कहीं आज भी घर के फैसिलिटीज़ में लैकिंग देखा जाता है। लोग आज भी बहुत सारे झुपड़ियों में रहते हैं, हटमेंट्स मतलब झुपड़ी बांध के रहते हैं। स्लम यानी यू कैन दे दैट वो जो विसीन स्लम एरिया, ठीक है, जहाँ वो टेंट बांधा होता है पेपर से, पेपर इन द सेंस वो प्लास्टिक के पेपर से, और एकदम गंदा पड़ा होता है, वहाँ पे वो रहते हैं। तो आज भी लोग गंदी डर्ट्स और हट्स में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये मेजरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पॉवर्टी, अभी कितना पॉवर्टी है इसके मेजरमेंट के लिए हमें ये यूज करना पड़ता है। हाउसिंग एक प्राइमरी नीड है, यू नो दैट बेसिक नीड में रोटी कपड़ा
घर माना जाता है, ठीक है। घर, रोटी, कपड़ा, मकान, मकान यानी घर, तो घर होता है बेसिक नीड में घर माना जाता है। तो हमें कैसे टाइप का घर मिलता है ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। हम जिस टाइप के घर पे रहते हैं वो हमारा लेवल ऑफ पॉवर्टी को इंडिकेट करता है। जैसे हम झुपड़ी पे रहते हैं, जैसे मैंने बोला स्लम एरिया में रहते हैं तो हम बहुत गरीब है। उसके बाद अगर हम रेंटेड हाउस में रहते हैं तो थोड़ा नॉर्मल, फिर हमारा एक 1 BHK का घर है तो अभी हम नॉर्मल गरीब है। तो गरीब तो है हम, ठीक है। तो क्यों क्यों गरीब है? क्योंकि घर पे कितने लोग हैं, ठीक है। 4 लोग हैं तो कम से कम 2 लोगों का तो अलग रूम होना चाहिए माना जाता है, एक हॉल होना चाहिए, किचन होना चाहिए, 4 रूम का तो एक घर होना चाहिए, तो उसका उतना स्क्वायर फीट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस देखो लिखा गया ऑलरेडी, वो घर कैसे बना है, उसमें वरांडा है कि नहीं, उसमें कितने मेंबर रह रहे, एक रूम रसोड़ा है उसमें 10 लोग रह रहे हो तो हम ये बोल सकते हैं वो अमीर है? नॉट एट ऑल, दे आर पुअर। वरना 10 लोग हैं तो कम से कम उनको 3-4 BHK वाला मकान तो चाहिए ना। तो इस तरीके से मेंबर्स कितने हैं, घर पे नल कितना है सबसे पहले, क्योंकि क्यों, पानी तो हमें पीने के लिए चाहिए, टॉयलेट की फैसिलिटी तो होनी चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का कैसा है, घर अच्छा बन गया, ड्रेनेज सिस्टम निखार कुआ वाला हो तो अच्छा है, नो दैट इज ऑल्सो नॉट। इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है कि नहीं। तो ये सारी चीजें एक घर की परसेंटेज को डिसाइड करता है। जो फैसिलिटीज हमें एक लेवल ऑफ फैसिलिटीज हाउसिंग में मिलता है वो हमारे पॉवर्टी को डिसाइड करता है। बट इंडिया की अगर हम बात करते हैं, आज भी जो हमने बात की कि घर वरांडा होना चाहिए, इतने मेंबर्स का इतना घर होना चाहिए, ड्रेनेज फैसिलिटीज होना चाहिए, इतना टैप उसमें होना चाहिए, ये सारी चीजें जो फुल फैसिलिटीज माना जाता है वो आज भी इंडिया के अंदर बहुत सारे घरों में नहीं है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 60 करोड़ लोग ऐसे घर में रह रहे हैं जो उनके लिए डेंजरस है, वो कभी भी अपनी जान खो बैठ सकते, गिर सकता है। लैक ऑफ हाउस, उनकी हेल्थ वहां पे खराब हो सकती है, जैसे उनकी सराउंडिंग इतना गंदा है और उस जगह पे उनका घर है तो उससे उनकी हेल्थ खराब हो सकता है। वैसे 60 करोड़ पीपल हैज बीन सीन अप। मोस्ट ऑफ द हाउस अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्रोमाइज करता है। कंप्राइज मतलब एक रूम का फैसिलिटी होता है उसमें 6-7 लोग रहते हैं। जैसे हम मुंबई की बात करते हैं, नो दैट ओवर पॉपुलेटेड, वहाँ पे घर नहीं है और वहाँ स्लम्स एरियाज ज़्यादा देखे जाते हैं। तो मेजोरिटी पॉवर्टी को मेजर करने के लिए हमें इसको भी एक इंडिकेटर की तरह यूज करना पड़ता है। सो नेक्स्ट इट इज इलेक्ट्रिसिटी। छोटा सा टॉपिक है इसलिए हम इसको कवर कर लेते हैं। वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कंट्री एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, electricity is imperative. India is a main producer and consumer of electricity. Then also because of high population and low per capita income, पर पर्सन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज वेरी लेस। मेजर फैक्टर की अगर हम बात करते हैं कोई भी कंट्री को डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी से। तो मेजर फैक्टर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी का माना जाता है। प्रोडक्शन में अगर कंट्री में कोई भी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है या लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करना है तो हमें वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मतलब जहाँ से उसको हटाया ही नहीं जा सकता, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम करता है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वो मेन प्रोड्यूसर है, वो खुद ही अपना इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और खुद ही उसको कंज्यूम भी करता है। बट फिर भी बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन होने की वजह से और लोगों की इनकम इतना ज़्यादा ना होने की वजह से, लो पर कैपिटा इनकम होने की वजह से जितना एक इंसान को इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करना चाहिए उससे वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रहा है और कहीं ना कहीं उतना वो यूजफुली रिसोर्सिवली यूज नहीं हो पा रहा है पॉवर्टी के वजह से। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम यहाँ तक रखते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट इन अ वेरी वेल मैनर. So now let us move on with a short summarization of the topic that we have seen today. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have seen the further indicators of the level of poverty measurement. In that we have seen the indicator of medical facilities. हमने देखा कि इंडिया के अंदर मेडिकल सर्विसेज कितने लैकिंग बैक है कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज में जहाँ डेवलप्ड कंट्रीज में 350 में एक डॉक्टर देखा जाता है तो यहाँ पे 6000 में एक डॉक्टर देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ मेडिकल सर्विसेज आज भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। हमने कई सारी चीज़ों के बारे में इवन देखा, इवन वी कैन से दैट के एक
1.7 करोड़ पीपल आर डाइंग ड्यू टू मलेरिया, टीबी एंड डायरिया। नॉर्मल बीमारी से भी 1.5 करोड़ लोग साल में डेवलप्ड कंट्री के अंदर मरते हुए नजर आते हैं। वही एड्स जैसे बीमारी जो है डेवलपिंग कंट्री के अंदर 90% देखा जाता है, जो कि 2.3 करोड़ का एग्रीगेटेड डेटा पे देखा गया। उसमें से 90% तो सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्री से देखा गया। मेडिकल सर्विसेज के बाद में हमने देखा हाउसिंग सिस्टम के बारे में। इवन आज भी हमारे यहाँ कई जगह पे ऐसा हम बोल सकते हैं, जितना प्रॉपरली हमें हाउसिंग सिस्टम मिलना चाहिए उतना प्रॉपरली हमें हाउसिंग सिस्टम नहीं मिल पाया। हमारे यहाँ आज भी गरीबी कहीं ना कहीं हाउसिंग सिस्टम में देखा गया। किस टाइप का फुल फैसिलिटी का जो घर होना चाहिए इतना अच्छा घर इंडिया में आज भी नहीं मिल पा रहा। 60 करोड़ लोग आज भी ऐसे घर में रह रहे जो कभी भी उनके हेल्थ के लिए खतरा बन सकता है और कभी भी उनके लाइफ के लिए खतरा बन सकता है। तो पॉवर्टी कहीं ना कहीं इस लेवल पे भी देखा जाता है। नेक्स्ट वी हैव सीन द इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो जितना हमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मिलना चाहिए प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए उतना हमें नहीं मिल रहा है, जबकि इंडिया ही हमारा प्रोड्यूसर भी और मेन कंज्यूमिंग भी ज्यादातर इंडिया में ही देखा जाता है। बट हाई पॉपुलेशन के वजह से रदर देन दैट हाई पॉपुलेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो लो पर कैपिटा इनकम है इस रीजन के वजह से ये चीजें इस तरीके से देखा गया है। नेक्स्ट वी हैव सीन दैट ड्रिंकिंग वाटर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ आज भी प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पा रहा है। यू नो दैट आवर बॉडी इज मेड ऑफ 70% ऑफ वाटर, जबकि हमें एक प्योर ड्रिंकिंग वाटर की जरूरत रहती है बट हमें उतना नहीं मिल पाता। आज भी वी कैन से दैट 26% लोगों को तो पानी ही नहीं मिल रहा, वो कुआं, पॉन्ड, स्प्रिंग रिवर ऐसी जगहों से पानी पी रहे हैं। 8% से 18% लोगों को टैप वाटर नल का पानी पीना पड़ता है और उसके बाद जितने बचे 86% जैसे लोगों को ही हमें एक अच्छा प्योरीफाइड वाटर, क्लीन वाटर मिल पा रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो कंटीजियस डिसीजेस, वाटर बॉर्न डिसीजेस है वो फैलता हुआ नजर आता है और लाखों लोग इस वजह से इंडिया के अंदर मरते हुए नजर आते हैं। आफ्टर दैट वी हैव सीन द प्रोविजन ऑफ टॉयलेट। 100% लोगों में से 66% लोगों के यहाँ ही टॉयलेट देखा गया है, बाकी 34% लोगों के यहाँ टॉयलेट भी नहीं है। सो ड्यू टू दैट contagious diseases, again waterborne diseases, and many lives are being ended up due to that uncleanliness of the provision of toilet. So provision of toilet is must needed as a level of poverty indicator. So यहाँ तक का टॉपिक हमने डिटेल में देखा। सो कल हम एजुकेशन से स्टार्टअप करेंगे। लास्ट हमने एंड अप इलेक्ट्रिसिटी से किया। मैंने थोड़ा अप एंड डाउन में पॉइंट्स एक्सप्लेन किया है बट मुझे जो इंपॉर्टेंस ज्यादा लगा वो मैंने पहले बोला, फिर जो इजी है वो मैंने लास्ट में बोला। दैट्स व्हाई मिक्सड अप द पॉइंट्स रादर देन दैट। अब हम नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करने के बाद एजुकेशन से स्टार्टअप करेंगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टुडेज क्वेश्चन इन अ वेरी वेल मैनर। आई होप दिस वीडियो वाज एन इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू ऑल। Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.